Hello guys, how are you? Welcome to my another vlog, and this whole vlog is about the how to get the job in field station, what is the pay rate, and how many hours shift you can get, and what is the procedure, how to work field station in the Australia. So I'll show you all of these things in the later. So I'm going now to the my field station, and it's around 1 hour away from my home, so it's around 73 kilometer. If you are going near the city side, then it will take a long time. If it's only 29 kilometer, it will still take 1 hour. But my field station is near the regional side, so it takes 73 kilometer and only 1 hour. So let's go over there. It's a very beautiful field station. I can't tell you the place name because there is only one field station in that place, so I can't tell the place. But yeah, I'll show you my field station, how it's work, how you have to fill the fuel, how you have to fill the fuel, and how to pay, what to do when someone just drive off there. So yeah, I will show you everything. Just keep on watch. All right. Hi Matt, how are you? Yeah, good, thank you. How are you? I'm good. All right, just a fill. It's number five. Yeah, I know. Oh yeah. All right. I need a register. Top. Right here. Yep, all good. You like the receipt for that? Pardon? You have the receipt or no? Yes, yes, Yep. please. There you go. Thank you. Thank you. Have a Have good a good one. night. See ya. So hello guys, we are now in the field station right now, and so this is my field station, and I will show you some things over here. So this is the wooden area over here. So there are firewoods and kindling. So there are two type of woods field stations are selling. So one is the firewood, that's a 15 kilogram, and one is the kindling, that's the 5 kilogram. And then we will check the ice one. So this is for the ice, and this is the air compressor over here, and I will show you. Yeah, so this is the number 3 pump. So you can see there is a 98, 91, and the diesel. So you the 91 is the normal fuel. So if we go by the sequence, then the 95 is the premium one, and then it will come 98, and then 91, and then come it's a diesel. And we have normal diesel and the high flow diesel. So normal diesel is for any car, and the high flow is only for if you have the big truck or big van, then it's very good for you because it's not take the long time to fill your car. So sometime if you this is the normal nozzle, you can see it's very small, so it's take time to fill your car. If you have the big tank, and this is the high flow, so you can see the nozzle, it's very big, so it's good for the big van or anything. And we have the number 7 and number 8 for the LPG gas. So this is for the LPG. Only some of the filtration has now only some of the filtration has now the LPG one. And I will show you this one. So this one is the super gas. So if you want to do the barbecue or if you have the trailer, then this is for that. So we have everyone has the big one and the small one. The big one is 9 kg and the small one is 3.5 or 4 kg one. So the small and the big super gas, we have the barbecue gas called. And yeah, this is what our filtration. This is my car. And now this is the closing time. So after we close the field session, I will show you what is the responsibility and what is the pay when I will sit in my car, because it's take 1 hour from here
So I'll show you everything. I will tell you everything, what you have to do and what you have to learn from that, and why field station is important, what is the advantage and what is the disadvantage. All right. So hi guys, so let's talk about now how to get the job in field station, or what are the scenarios and what are the advantages, what are the disadvantages, what is your responsibility while you're working in the field station. So let's talk about that, so let's talk about first how to get the job. So first of all, you have to apply through the online. You mostly they don't give the job if you go straight away in the field station. So what you have to do is, in the Australia there are some, mostly field station are the BP and 7-Eleven or something like that. So you can apply through the BP careers, you can apply through the 7-Eleven careers, you can apply through the Ample careers. So whatever has this job vacancy, so they will post in that website. They post in the website and you have to just go through that. You have to just submit the application. So what you have to do is just submit the application, get the reference number, and then go to straight away that field station, because you already got the address. Go over there, tell them I already apply online. Just tell them I already apply online and this is my reference number. Can you please check it out and just make the process as soon as possible. So if they are okay with that, if they are okay with your request, then they will just check out your application and give you the job. But if you go directly over there, they will tell you, give us the physical resume. If you're going there, make sure there is a manager. If there is no manager, don't give the resume, because they don't care about the resume. Because if you give to the resume to the employee, they will make sure that this resume will not go to the manager, because if you will get the job, they will cut the other employee's shift. So please make sure whenever you are going to the any field station, any food industry, manager has to be there, or you have to just hand your resume to the manager. All right. So this is all about the job, Melbourne CBD, and there is some few suburbs just nearby over there. So that are the busiest because lot of students are living there. So make sure आप है ना कहीं थोड़े दूर चले जाओ, थोड़ा डिस्टेंस लेके, जैसे 25-30 किलोमीटर्स थोड़ा दूर चले जाओ रीजनल एरिया के साइड, तो बहुत इजी है जॉब लेना वहाँ पे फील्ड स्टेशन, या तो कहीं भी कोई भी चीज़ हो जाए वहाँ पे जॉब लेना है ना आपका इजी हो गया, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं होता, क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी नहीं होती, हर कोई स्टूडेंट के पास गाड़ी नहीं होती, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से वहाँ जाना बहुत ही हार्ड होता है। तो है ना, अगर आपके पास गाड़ी होनी चाहिए तो आप वहाँ चले जाओ थोड़ा दूर, और वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपका कोई कुछ भी नहीं हो रहा तो। और जॉब की बात हो गई, दूसरी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और शिफ्ट की। तो यहाँ पे है ना 3 टाइप की शिफ्ट होती है, 1 मॉर्निंग शिफ्ट, 1 आफ्टरनून शिफ्ट एंड 1 नाइट शिफ्ट। बट जो मेरा फील्ड स्टेशन है वो सिर्फ डे को ही ओपन रहता है, वो 24 आवर्स वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ही शिफ्ट होती है, मॉर्निंग की और आफ्टरनून की। तो नाइट शिफ्ट का जो पे होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और आफ्टरनून की शिफ्ट का पे उससे थोड़ा कम होता है, और मॉर्निंग शिफ्ट का पे उससे थोड़ा कम होता है। तो जैसे अराउंड लगा लो आप 25 से 28 के बीच में आपको मॉर्निंग शिफ्ट में पड़ेगा, 28 से 32 या तो 30 के बीच आपको आफ्टरनून में पड़ेगा। $1 या $2 का ही डिफरेंस होता है, और अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो $2-3 का डिफरेंस पड़ता है। और हाँ, तो मतलब अगर मोटा मोटा लगा लो तो 25 से 32 के बीच में आपका पे होता है, या मॉर्निंग से लेके नाइट तक कभी भी आप कर लो। और अगर आप सैटरडे संडे अगर आप जॉब करते हो तो आपका पे हो जाता है 35-36। सो मोर जस्ट ऐड कर दो $2 और $3, सो 35 और 36 समथिंग आपका पे हो जाता है। तो फील्ड स्टेशन में पे बहुत ही अच्छा होता है, और काम इतना कुछ नहीं करना होता। नाइट शिफ्ट वालों को थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि स्टॉक आता है, न्यूज़पेपर, वो सब डिलीवरिया, तो वो सब करनी पड़ती है। और लेकिन नाइट शिफ्ट लेने के लिए मोस्टली कोई बंदा तैयार नहीं होता। एक तो आपका डेली जो रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है, दूसरी बात नाइट शिफ्ट में जंकी जो आते हैं, जो जंकी का मतलब यहाँ पे जो बहुत पी के जो हंगामा करते हैं इंडिया में, वैसे ही यहाँ पे भी इंडिया का हंगामा और यहाँ के हंगामे में फ़र्क होता है। इंडिया में लोग दारू पी के करते हैं, यहाँ पे ड्रग्स भी लिए होते हैं, तो उन लोगों को कुछ भी
फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कुछ पता ही नहीं होता, वो अनकॉन्शियस होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। मैं जब डोमिनोज़ में काम करता था तो उन लोगों ने ये करा कि हमारा जो स्कूटर होता है वो चोरी कर लिया, चोरी करके डोमिनोज़ के पीछे वाली स्ट्रीट में ही रख के वो चले गए। अब उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। वो जैसे ये लगा लो कि ज़ोंबी टाइप है कि उन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, बस वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, जो मन करता है वो करते हैं। कभी किसी की शीशा तोड़ दिया, कभी किसी का कुछ कर दिया ऐसा, कभी किसी को छेड़ दिया बस। तो उन लोगों पे कोई केस भी नहीं होता उन लोगों पे, क्योंकि यहाँ पे जो पुलिस है उन लोगों के पास इतने राइट्स नहीं है कि वो उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन ले। अगर आप भी उससे भिड़े तो आपको जेल हो सकती है, लेकिन उसको नहीं हो सकती, क्योंकि रीज़न ये है कि वो अनकॉन्शियस है। तो उन लोगों को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, तो उनको कोई सज़ा नहीं होगी, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप क्या कर रहे हो। तो ये तो वही बात हो गई जो मैंने क्राइम पेट्रोल में देखा था कि क्रिमिनल तो क्राइम करेगा, लेकिन आप क्यों नहीं सतर्क रहते। तो बस यही बात होगी। तो आपको बस यहाँ सतर्क रहना है ऑस्ट्रेलिया में, और बस अपना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप सेल्फ डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर सामने अगर ये कोई जंकी या वो सब है तो आप कुछ नहीं कर सकते उनके खिलाफ, चाहे वो कुछ भी कर दे, बस भागो वहाँ से, बस यही कर सकते हो आप। तो यही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। इसीलिए जो अमेरिका में जो किसी को भी गोली मार देते, ये कर देते, क्यों कर देते हैं? क्यों हमारे इंडियंस है जो वो सामने फाइट नहीं कर सकते, कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ की जो जुडिशल सिस्टम है वो हमारे सपोर्ट में नहीं है, वो उन लोगों के सपोर्ट में है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमें भागना है, या तो बस पुलिस को कॉल करना है, वो चाहे कुछ भी कर ले हमारे साथ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही होता है। और यहाँ पे जो रात को जो ये जंकी और वो सब आते हैं, तो वो लोग है ना ड्रग्स का इंजेक्शन लेके आते हैं। तो अगर मोस्टली जो 24 आवर्स वाले फील्ड स्टेशन होते हैं तो वहाँ पे छोटी सी विंडो रखते हैं। तो अगर पहले आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद ही आप फिल करा सकते हो, या तो समटाइम्स सम फील्ड स्टेशंस डोंट हैव लाइक दिस, सो यू कैन फिल एंड देन यू कैन पे। बट छोटी सी विंडो होती है तो उसमें से पेमेंट लेना होता है। और एक इसका भी किस्सा बना था कि उस छोटी सी जो विंडो होती है उसमें से जो अंदर जो बंदा काम कर रहा था उसने हाथ निकाला मशीन देने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो उसके हाथ पे वो इंजेक्शन मार दिया था। और वो इंजेक्शन होता है एड्स का, तो ख़त्म है उसके बाद आपकी ज़िंदगी, और उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता। तो बस ये आपको ध्यान रखना है रात नाइट शिफ्ट करते टाइम। तो अवॉइड ही करो नाइट शिफ्ट करने को। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप नाइट शिफ्ट करो, और अगर कर रहे हो तो एरिया देख के करो। जैसे डेंडेनोंग है, स्प्रिंगवेल है, और सिटी साइड एक दो एरिया है जैसे टार्नेट हो गया, तो वहाँ ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। वहाँ पे तो अंदर भी आ जाते हैं, अगर आपका गेट बंद हो तो तोड़ के अंदर आते हैं, सब कुछ लूट मचा के फिर वापस चले जाते हैं। तो नाइट की शिफ्ट है ना, आप अवॉइड करो, क्योंकि नाइट को कोई बंदा नहीं होता कि आपको कोई सपोर्ट करेगा। जैसे अब बीपी फील्ड स्टेशन हो गया, तो बीपी में ये होता है कि आपको नेक में एक बैंड देते हैं कि जैसे अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है या तो कोई बंदा आ रहा है आपके कुछ वो है, तो वो बटन होता है, वो पैनिक बटन होता है, तो उसको आप प्रेस करोगे तो पुलिस तुरंत ही आ जाएगी। लेस देन 30 मिनट्स उसके अंदर पुलिस आ जाएगी। तो 30 मिनट्स तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो वो पैनिक बटन आता है, उसको दबाते ही पुलिस आ जाती है। लेकिन अगर वो बटन आपने ऐसे ही दबा दिया, जैसे गलती से कभी दबा दिया और पुलिस आ गई, तो आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ता है $10,000 या $15,000 का। तो मेक श्योर व्हेनेवर यू वर्क। सो फील्ड स्टेशन इज़ जस्ट लाइक द बॉम्ब, यू नो, कि कभी भी फट सकता है। तो आपको बहुत ही सारा ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज सिर्फ यही है कि कम काम करना पड़ता है और पे उसका ज़्यादा होता है। तो बहुत ही ठंड हो गई है, अभी 10 डिग्री हो गया, तो थोड़ा हीटर चला लेते हैं। हाँ, तो बस यही सिर्फ एडवांटेज भी है और काम भी कम है। और हाँ, और एक और एडवांटेज है कि आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैं जब डोमिनोज में काम करता था, वहाँ पे कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती। I want just one margarita, put it in system, large, medium, fuck it all, get the payment and just do the deliveries, just like that. I did the shift under shift as well over there, but you can't improve your English over there because आपके अंडर कई बंदे काम करने के लिए होते हैं, बस वही संभालते हैं, और इंग्लिश में इतना कुछ बोलना नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि बस पिज़्ज़ा का नाम बोलना है, वो पिज़्ज़ा का नाम बोलेगा, ये बोलेगा, गार्लिक ब्रेड बोलेगा, बस ख़त्म, ऑर्डर लो, ख़त्म। और यहाँ पे फील्ड स्टेशन में आपकी कस्टमर सर्विस सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कनेक्शन बनाने पड़ते हैं लोकल से, तो वो दोबारा आए आपके फील्ड स्टेशन में फ्यूल पुराने के लिए। तो आप बात करते 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 नए वर्ड्स भी सीखते हो
और आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल भी अच्छी होती है और इम्प्रूव कर सकते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल विथ अनदर पर्सन। और जब मैं पहले डोमिनोज में काम करता था, अगर ओजी अगर कुछ बोल दे तो अगर फास्ट में तो उतना कुछ पता नहीं चलता था मेरे को, लेकिन आफ्टर दिस जॉब मुझे अब सब कुछ पता चलता है वो क्या बोलता है। हाँ, हम उसकी जैसे बोल नहीं सकते, लेकिन हम काम ज़रूर कर सकते हैं उसके साथ, और वो जो भी बोल रहा है वी कैन अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ द बेनिफिट। सो पे इज़ द बेनिफिट, less work is the benefits, and your communication skill. So this all the threes are benefits for the field session. And disadvantage is the sometime अगर बहुत ही ट्रैफिक हो जाए अंदर तो आप मिसअंडरस्टैंड हो जाते हो कि किसने कौन से पंप से फ्यूल पुराया, और फिर आप किसी का पेमेंट किसी को ले लेते हो और फिर वो आपको पे करना पड़ता है, क्योंकि तो वो डिसएडवांटेज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड डिसएडवांटेज, अगर ड्राइव ऑफ हो गया तो वो आपको ख्याल रखना है, आपको पुलिस को कॉल करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। थर्ड, अगर कोई भी डिलीवरी आए, डिलीवरी को चेक करो, स्टॉप ढंग से लगाओ कि अगर कोई बंदा आए तो वो तुरंत ही पहचान जाए कि कौन सी एक्सपायर डेट वाली है। ये जैसे ये होता है कि अगर कोई नया स्टॉक आया है तो वो स्टॉक पीछे फिल करना होता है, क्योंकि अगर नया स्टॉक अगर आपने आगे फिल कर दिया तो जो पहले की जो आइटम है वो एक्सपायर हो जाएगी और बिकेगी नहीं, और नई वाली आइटम सारी बिक जाएगी। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको करनी पड़ती है। समटाइम्स ये लोग क्या करते हैं, जो मैंने आपको सुपा केस बताया था, आपको वुड बताया था, आइस बताया था, तो ये लोग क्या करते हैं, एक का पेमेंट करते हैं, 2 दिन लेके चले जाते हैं। अब इतनी ट्रैफिक होती है तो आप बाहर जाके उनको ये नहीं बोल सकते कि ये एक पेमेंट किया था, ये वो आपकी सुनते भी नहीं है, वो लेके चले जाते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब इससे आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, बस आपको बस यही है, पुलिस को कंप्लेन करो बस, और कुछ नहीं आप कर सकते। और ड्राइव ऑफ हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की तो है, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो या तो फिर कभी चोरी डकैती हो गई, जैसे कि अगर कस्टमर को आपके कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपने कुछ बोला, उसको रूड लग गया, वो गाली दे देगा, मिडिल फिंगर बता देगा, और या तो फिर कुछ तोड़ के चला जाएगा, कुछ फेंक के चला जाएगा, कुछ मैस करके चला जाएगा, तो वो आपको बस सब कुछ क्लियर करना है। फिर तो वो सारी चीज़ मोस्टली जाती है आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे, कि अगर आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो कस्टमर को, और आप क्या करना है, सिर्फ जब वो आए तो अच्छे से ग्रीटिंग्स करो। और अगर वो बोले कि अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि भाई ये बंदा मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अगर वो कुछ मांगे दे दो, कोई बात नहीं। और आप जब आप जॉब पे लगोगे तो ओनर और मैनेजर जो भी होगा वो आपको यही बोलेगा, अगर कोई बंदा आपको लग रहा है कि ये है तो आपको वो दे दो, अगर देना चाहिए तो दे दो, क्योंकि वो अगर आप एक चीज़ नहीं देंगे वो $2 की होगी, वो तोड़ के जाएगा, वो $100-200 की होगी। तो इससे अच्छा वो चीज़ दे दो और उसको चले जाने दो यहाँ से। जैसे मैं भी काम करता हूँ, कभी कभी यहाँ पे आते ही यंगस्टर्स 5-6 लोग आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि मेरे को ये चाहिए, फ्री में चाहिए, तो भाई ले जा भाई, $3-4 की चीज़ है, ले जा। 4-5 बंदे आके अगर सिगरेट और वो सब चुरा के लेके गए तो वो हज़ारों का स्टॉक होता है, तो इससे अच्छा वो $2-3 की चीज़ लेके जाए, वो सही है। तो है ना, इतनी कोई वो फाइटिंग नहीं करनी है, अपना वो नहीं दिखाना कि एटीट्यूड की मैं हूँ जॉब पे तो कैसे लेके चला गया, ये कुछ नहीं करना। तो ये सारा डिसएडवांटेज है, तो ये सब ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि और यहाँ पे और भी सारी ड्यूटीज़ होती है, जैसे क्लीन करना होता है, पब्लिक रेस्टरूम क्लीन करना होता है जो, और हमारा प्राइवेट होता है वो क्लीन करना होता है, फिर अंदर स्टोर में साफ़ सफाई रखनी होती है, स्टॉक फिल करना होता है, और डिप्स लेने होते हैं। डिप्स मतलब यही कि अगर आप डेली डिप्स लेते रहोगे, जैसे कि आपको जो टैंक होता है बड़ा सा, वो चेक करना होता है कि अंदर कितना फ्यूल है, वो आपको सब मार्क करना होता है डेली। तो जैसे ही थोड़ा कम होए तो जो ओनर या मैनेजर होता है उसको पता चले कि भाई कब डिलीवरी ऑर्डर करनी है। और जो फ्यूल की प्राइस होती है वो भी उस पर डिपेंड करती है, जिस तरह से इन लोगों को डिलीवरी मिलती है, जिस प्राइस में इन लोगों को फ्यूल मिला है, उसी तरह से ये लोग थोड़ा सा कमीशन लेके ये लोग ज़्यादा में बेच देते हैं। तो बस यही फ्यूल जो प्राइस चेंज होती है वो भी इसी पे होती है। तो ये सब आपको बस ध्यान रखना है, और इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है फील्ड सेशन में। थोड़ी सी सिस्टम होती है, बस आपको स्क्रीन पे ही काम करना होता है, थोड़ा सा क्लीन करना होता है, बस स्टॉक फिल करना होता है, ये इतना कुछ वो कोई हार्ड वर्क नहीं है। तो काम बहुत ही कम है, पैसे ज़्यादा है। करो आप किसी के साथ फ़ोन पे बातें कर लो, कुछ भी कर लो,
कभी कोई कोई फिल सेशन होता है जो फ़ोन यूज़ करने नहीं देता, बाकी सारे यूज़ करने देते हैं कि आप बात कर लो ये सो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप बात कर रहे हो, कस्टमर सामने खड़ा है और फिर भी आप बात कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए बस। तो बस यही सब बातें है। तो आपको जॉब कैसे मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया, क्या एडवांटेज है वो बता दिया, क्या डिसएडवांटेज है वो बता दिया, और कस्टमर सर्विस अच्छी रखनी है बस, तो सब कुछ सही है। और जब भी आप जॉब लेने जाओ तो कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे अच्छी रखो मैनेजर के साथ, तो वो तुरंत ही आपको ले लेगा। और थोड़ा सा ऐसे ये नहीं कि नाइट में उठ के चले गए, नाइट जैसे सुबह में उठे चल पड़े जॉब लेने के लिए, ये नहीं होता। थोड़ा सा ऐसे ढंग से बिहेवियर लेके जाओ कि थोड़ा सा रेडी होके जाओ कि मैनेजर को और जो ओनर हो उसको भी लगे कि भाई ना बंदा सही है, तो वो तुरंत ही ले लेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करके रखा है और रिज्यूमे सब आपको जैसे रेफरेंस नंबर देना है और हो जाता है। और ये भी नहीं कि ऑनलाइन अप्लाई करने से ही मिलता है। मेरा एक जो फ्रेंड था वो मैंने बताया वो रीजनल साइड चला गया था, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो वो डायरेक्ट वहाँ रिज्यूमे लेके चला गया। वो उबर ईट्स कर रहा था, उसने दे दिया रिज्यूमे और उसको दूसरे दिन ही ट्रेनिंग में बुला दिया, जॉब मिल गई। तो ये नहीं होता कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करने से मिलता है। लेकिन आपको अगर जो मेट्रो सबब होते हैं, जैसे बड़े बड़े सबब है, ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है ये सब चीज़ें, तो ही आपको जॉब मिलती है। और यही सेम चीज़ अगर आपको वुलवर्थ में और कॉल्स में भी जॉब चाहिए तो सेम ही चीज़ करनी है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, रेफरेंस नंबर लेना है, या आफ्टर 1 और 2 डेज़ आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे मैनेजर को मिलना है और वहाँ पे बोल देना है कि ये वो, अगर उनको वैकेंसी होगी वो तुरंत ही आपको बोल देंगे दूसरे दिन ट्रेनिंग में आ जाना। और बस यही सब होता है। उसके कुछ इंडक्शन पूरे करने होते हैं, 1-2 दिन लग जाते हैं उसमें, बस ख़त्म। तो यही सब होता है। तो जॉब इतना कोई हार्ड वर्क नहीं है। अगर आप किसी और पे अगर आपको वीडियो चाहिए, कोई और जॉब या कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या कोई और प्रैंक वीडियो, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक and hit the subscribe button and see you soon.